A very good morning, class 6. Today we will study the final conclusion of the story A Game of Chance. So students, before learning the paragraphs, let's quickly revise what we studied in our last two classes. Every year, the occasion of Eid, there was a fair in Rashid's village. Various tradesmen came there to sell their goods. Uncle took Rashid and Bhaiya to the fair. In the fair, Uncle met his few friends. They wanted him to spend some time with them. So, Uncle warned Rashid neither to buy anything nor to go too far from the fair. So, he promised, and then Bhaiya and Rashid went from shop to shop. There they find a lucky shop. The shopkeeper was neither too young nor too old. He was neither too smart nor too lazy. He wanted everybody to try their luck. There were dices on the table. Every person has to pay 50 paise. Pick up any 6 dices, add up the numbers on the dices and find the total. The article marked on with that number was of the person. Then an old man came there and paid 50 paise and selected 6 dices. He got number 15, and the article which was marked as 15 was a beautiful clock, but he don't want that clock. So the shopkeeper bought that clock from the old man and paid him 15 rupees. Then a boy came in the fair shop, in the lucky shop. He was a little older than Rashid. He got a comb worth rupees 25 paise, and thereafter again he tried his luck and won a fountain pen worth rupees 3 rupees. Again he tried his luck, and this time he got a wristwatch worth rupees 25 paise. One more time he tried his luck, and finally he won a table lamp worth more than 10 rupees. Now he left the shop with a smile and a good deal of cash. Now Rashid also wanted to try his luck. He paid 50 paise and took 6 dices. The luck was Rashid was not too good. He got only 2 pencils. He tried again. Now he won a bottle of ink. ठीक है? Again he tried his luck, and this time also the luck was not with him. Finally, in the hope of winning big prizes, he continued again and again, each time paying 50 paise. But each time he got a article of very small value. Lastly, only 25 paise was left with him, so the shopkeeper showed kindness. But Rashid again played with that 25 paise, and that 25 paise also disappeared. So this my story we covered in our last class. Today we will start reading our paragraph number 9. People were looking at me, some were laughing at my bad luck. तो क्या होता है, जो भी लोग होते हैं वो बार बार रशीद जो है उसका लक उसका साथ नहीं दे रहा था, तो जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उस शॉप के आसपास वो रशीद की तरफ देखते हैं और वो उसके बुरे जो है किस्मत पर हंसना शुरू कर देते हैं. बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन कोई भी उससे सिंपैथी नहीं दिखाता है. सिंपैथी का मतलब होता है बच्चों सहानुभूति दिखाना. ठीक है, सहानुभूति को हम बोलते हैं सिंपैथी. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. तो अब इसके बाद में वापस जब बार बार उसका काम लग उसका साथ नहीं दे पाता है रशीद का, तो जो है उदास होकर के रशीद जो है अपने भैया के साथ में उसी जगह पर वापस पहुंच जाता है जहां पर अंकल ने उनको छोड़ा था, और वहां पर खड़े होकर के वो दोनों अंकल के लौटने का इंतज़ार करने लगते हैं. प्रेजेंटली ही केम, उसके बाद में क्या होता है, जो अंकल होते हैं वो वापस आते हैं. ही लुक्ड एट मी एंड सेड
रशीद यू लुक अपसेट। तो वो रशीद को देखते हैं और देखने के बाद में वो समझ तो जाते हैं कुछ तो हुआ है इसको। उसके बाद वो रशीद से पूछते हैं कि रशीद तुम जो है कुछ उदास से लग रहे हो। अपसेट का मतलब होता है बच्चों उदास, ठीक है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है मुझे बताओ। आई डिड नॉट से एनीथिंग। तो रशीद जो होता है वो कुछ भी नहीं कहता है। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। भैया सारी कहानी जितनी भी हुई होती है उस लकी शॉप पे, वो सारी की सारी बात भैया जो जो होते हैं वो जो है अंकल को बताते हैं। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड। तो ये सुनने के बाद में अंकल को ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ना ही वो उदास होते हैं। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। वो हंसते हैं और मेरी पीठ को थपथपाते हैं। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। He took me to a shop and brought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. उसके बाद में वो जो है रशीद को अपने साथ में लेके जाते हैं। वहाँ से उसको एक सुंदर सा अम्ब्रेला, बिस्किट्स, कुछ मिठाइयाँ और कुछ छोटे छोटे तोहफे दिलाते हैं। देन वी रिटर्न होम। उसके बाद में हम लोग घर वापस आ जाते हैं। बैक होम, जब हम लोग घर वापस आते हैं, अंकल टोल्ड मी डैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। तो जब घर हम लोग लौटते हैं तो अंकल मुझे बताते हैं कि जो लकी शॉप में जो शॉपकीपर था उसने मेरा बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल आई सेड। तो रशीद कहता है कि नहीं अंकल ऐसा नहीं है, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। ये सिर्फ मेरी बुरी किस्मत थी, मेरा बैड लक था ये। नो माई बॉय। तो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है। इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। तो ये ना तो तुम्हारा अच्छी किस्मत थी और ना ही तुम्हारी बुरी किस्मत का मैटर था, ठीक है। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन फिर रशीद बोलता है कि लेकिन अंकल मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर एक जो है बूढ़ा आदमी था जिसने जो है एक बहुत अच्छी सी घड़ी जीती थी और एक लड़का था जिसने 2 और या 3 जो है बहुत महंगी महंगी चीज़ों को जीता था। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा। यू डोंट नो चाइल्ड। तो अंकल जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें नहीं पता है। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। वो सब जो थे वो शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो सिर्फ मिल करके तुम्हारे साथ में ट्रिक्स कर रहे थे। ट्रिक्स का मतलब होता है कि हम किसी को उकसाते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो हाँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए ट्रिक्स कर रहे थे कि तुम अपना जो लक है उसको मतलब तुम जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाओ और अपना जो किस्मत है वो वहाँ पर आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहते थे जो कि उनको मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट। और अब इस बात को तुम यहीं के यहीं भूल जाओ एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और तुम जो है अब ये बात किसी को भी अपने बुरे किस्मत की या अपनी हम कह लें बेवकूफ़ी की ये बात तुम किसी को भी मत बताना। सो स्टूडेंट दिस वाज द स्टोरी एंड आई होप दैट you all liked it. So the moral of the story is that we don't have to believe on such lucky shops. There is no good luck or bad luck. Okay, we only have to do the hard work to win anything in our life. Once again students, read this story. Okay, thank you बच्चों.